went through hell and we came back. What, dude? You're not supposed to tell that. From Team Ocean, right? We're on our way from Neil Island to Port Blair. Each by now, we're delayed by 5-7 minutes. Weather is so hot. Weather is really nice. Letting everyone in. We're reaching Port Blair now. Welcome back to our channel Adventures of Ari. I'm Reema And I'm Elton. and this is our Andaman trip vlog part 3. Yeah. So we are in Port Blair. And we went through hell and we came back. What, dude? You're not supposed to tell that. Okay, continue. So it was a real adventure. We rode for 2 hours to where? Vandoor. Vandoor Beach. We stayed there for a night in Sea Princess Beach Resort. Who booked it? As usual. RLD booked the trip. Booked the resort. It was very far. Okay, it was some 28 kilometers. 28 kilometers, and I had to ride the scooter. I had to ride without checking. To scooter khan gilai. Without checking. So, anyways, it was a good resort. View is really good from that resort. But we food is okay. Ambience is good. Food is okay, yeah. very average. Yeah, okay. Ambience is I would give it like a 6 out of 10. Okay. And what we missed was the morning beach walk, which we could have done. 5:40 was sunrise, but we missed it because we were very tired and we slept. And we shifted to another resort inside the city. So it's not a resort, it's a hotel. So it's called Seascape Resort in Port Blair. It's near to the city center. It's about 4 kilometers from the city center. But we can visit places much faster. So our travel time is reduced. Okay. Smart moves. Fine. Third option's none, but it's okay. Today we have on the plan Cellular Jail, visit Ross Island. I'm not feeling that well. No, North Bay. Not North Bay. Do sea walk, hopefully. Hopefully, not decided. Completely, yeah. But that's on our plan. Yeah. So yeah, let's get going. Bye bye. Bye bye. See you.
cellular jail. The Indian bus still stands as a mute witness. Lost inside cellular jail. We will go talk to prisoners now. Introduce ourselves. Prima will do the news reporting. Who's done which crime? हाँ? तुझे नहीं सर्ट क्राइम था नहीं करना। विजिट करने के लिए आपको यहाँ से हाफ एन आवर का टाइम लगता है। तो जो हिस्टोरिक मोनूमेंट है डायरेक्ट टू स्टार्ट हो रेट ज़्यादा है, अगर जाना है तो अभी जा। Against the brutalities of the British. Vararism, oh my God. The name still is derived from India. ब्रिटिशर्स ने 10 मार्च 1858 से उस समय उन लोगों को वाइपर आइलैंड में रखते थे। वाइपर आइलैंड एक सेपरेट आइलैंड है, इस डायरेक्शन में है और अंडमान का कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटिशर्स ने वहीं पे बनाया था 1867। लेकिन वो ಅಲ್ಲಿಗೆ ವೈಪರು ಶೇರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಲಾಕ್ ಮಾತ್ರ ಹಂಗ ಫಾನ್ಸಿ ಮಲರಿ ते राउंड गलतत पड़े कालते ನೆಕ್ಲೆಸ್ नेक मोरैतत तना गलतत ने ते या वट ते गला किते मळार ताने लॉर्ड मायो मळने तो येताना ताका ताने चाकू मारलेंगे सो ताचा मर्डर ಅಂತ ताका भीतर घालना ताका तानी necklace I mean that chain that this thing they tied him to this हां ते असे करतात ने प्रेस करून मोरैतत मर्डर करतात I mean ये करतात see dude 5 lakh it seems what oh my God open hanging they'll use that they'll open this my god लो what's that car हाँ they'll open this and then they'll crawl inside ओपन था, ओपन में हैंग करते थे। पूरा रूम न्यू है, ऊपर वुडन का बीम ओरिजिनल है, नीचे का प्लेटफॉर्म ओरिजिनल है, रस्सी चेंज कर दिया है। एट ए टाइम 3 पर्सन हैंग कर सके ऐसा सिस्टम था। लीवर खींचेगा, प्लेटफॉर्म नीचे को खोलेगा, नीचे 8 फीट डेप्थ है, क्रूजर हैंग हो जाता था, डेथ हो जाता था। बॉडी नीचे से कलेक्ट करके वो गेट ओरिजिनल है वहीं से बाहर ले जाते थे। लेकिन यहाँ पे किसी पॉलिटिकल फ्रीडम फाइटर को हैंग किया गया ऐसा हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि हैंग करने के लिए किसी को अंडमान नहीं लाते थे। इंडिया में जेल थे, वहीं पे फांसी देते थे। अंडमान जो फ्रीडम फाइटर्स आते थे ज़्यादातर जो लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट, आजीवन कारावास। फिर आने के बाद में पॉलिटिकल फ्रीडम फाइटर्स का टॉर्चर में डेथ हुआ था। फोर्स फीडिंग तब करते थे जब फ्रीडम फाइटर हंगर स्ट्राइक करते थे। हंगर स्ट्राइक तोड़ने के लिए पहले मुंह से खिलाते थे, खा नहीं रहा तो हाथ पाँव बांध करके नाक से ट्यूब डाल करके पंप के द्वारा लिक्विड पिलाते थे, चावल का माड़ या मिल्क। उस वजह से 10 डेज के अंदर 3 फ्रीडम फाइटर्स का डेथ हुआ था, महावीर सिंह, मोहित मोहित्रा और मोहन किशोर नामदार जी। हैंग केवल उन्हीं को किया जो अंडमान आने के बाद फिर से यहाँ पे किसी ब्रिटिश ऑफिसर को मारा हो, सिपाही को मारा हो या जेल तोड़ करके भागने की कोशिश की, उनके ऊपर दोबारा केस चलेगा, फैसला होगा, फांसी दो तो देते थे। तो कितने लोगों को फांसी दी है इसका कोई रिकॉर्ड चेयर है, वो चेयर ओरिजिनल नहीं है। रात में जो शो होता है लाइट एंड साउंड उसको दिखाने के लिए बनाई गई डेविड बैरी का चेयर, एक सिंबॉलिक चेयर शो के लिए यूज करते हैं। और एक वर्कशेड है इस बिल्डिंग के, इस बिल्डिंग में जो फ्रीडम फाइटर्स रहते थे वो यहीं पे काम करते थे। बड़ा वर्कशेड था, इसे मॉडिफाई करके आधे में फोटो गैलरी बना दिया। नीचे का फ्लोर, ऊपर का छत लकड़े का चल चेंज हो गया। ये ओरिजिनल ऑयल मिल है, वहीं पे है। ऐसे बहुत सारे थे, अब एक बचा है। तो कोकोनट का ड्राई खोखरा भरेगा, साइड में तो वेट लगा देगा, वेट लगेगा, चेन टाइट हो जाएगा, प्रेशर सेंटर में चला जाएगा। फिर जब पकड़ करके घुमाएगा, बीच वाला ठीक से घूमता रहेगा, नारियल पिसता रहेगा। अंदर एक पाइप होता था, गड्ढे में बर्तन रखेंगे और इसमें कलेक्ट होता रहेगा। 1 डे में 1 फ्रीडम फाइटर को 30 पाउंड्स कोकोनट ऑयल निकालना पड़ता था। मस्टर्ड ऑयल निकालने देंगे तो 10 पाउंड्स पर डे, जो बैल भी नहीं निकाल पाते थे। जब बैल नहीं निकाल पाते थे इंसान कहाँ से निकालेंगे। कुछ फ्रीडम फाइटर इसे चलाते चलाते थक जाते थे, कुछ चलाने से इनकार करते थे, काम नहीं करेंगे। तब अंग्रेज उनका हाथ पकड़ करके इस पाइप के साथ रस्से से बांधते थे। जब वो नहीं चला पाते थे पीछे से मारते थे। काफ़ी फ्रीडम फाइटर ये काम करने के बाद बीमार पड़ जाते थे और कुछ का मानसिक संतुलन भी बिगड़ जाता था। चलाते थे, उसे दिखाया गया। और ये पहला दिख रहा है कोकोनट का छिलका निकालता है। छिलका निकालने के बाद छिलके को कूटते थे। जब छिलका नरम हो जाता था बाहरी छिलके को हटाकर बाकी को पानी में भिगोते थे। फिर जब मॉइस्चर हो जाता था फिर बाहर निकालते थे, कूट करके धूप में सुखा करके इस मशीन में रोल करते थे। यानी कि रस्सी बनाने का काम, रस्सी बनाने का काम किसी भी फ्रीडम फाइटर को देता था तो एक दिन तक उनको 4 पाउंड रस्से तैयार करना है। नहीं कर पाते थे पनिशमेंट दिया जाता था। पनिशमेंट आगे है और ये मशीन के ओरिजिनल आगे पनिशमेंट। if they are not doing that it's a punishment for them जेल का सबसे सख्त पनिशमेंट ही था। ये फ्रेम ओरिजिनल है, इसको बोलते हैं फ्लॉगिंग फ्रेम। हिंदी में टिकटिकी। फ्रीडम फाइटर को उसके ऊपर चढ़ाते थे, पाँव को ब्लॉक करते थे, कमर में बेल्ट बांधते थे, हाथ को हैंडकफ, ताकि मारते वक्त इधर उधर मूव न कर सके। फिर एक पतला सा टॉवल गीला करके पहनाने के बाद बैक साइड में मारते थे। यहाँ मारे तो चमड़ी उधर जाता था, फिर वो फ्रीडम फाइटर ना बैठ सके ना सो सके। और मारने वाला भी इंडियन
सेलुलर जेल में पॉलिटिकल फ्रीडम फाइटर्स भी आते थे, नॉर्मल क्रिमिनल भी आते थे, चोर डाकू डकैत। उनमें से जो हट्टा मुस्टंडा होता था, जो दिमाग से कम होता था, क्रूअल ज़्यादा, ऐसे लोगों को ब्रिटिशर्स काम पे रखते थे। किसी को बनाते थे पेटी ऑफिसर, किसी को वार्डर, किसी को जमादार। इनका फ़ायदा ये था खाना बढ़िया मिलता था, मार खाने का ज़रूरत नहीं, हार्ड वर्क करने का भी ज़रूरत नहीं। जेल के बारे में सुनेगा। सेलुलर जेल को बनाना स्टार्ट किया 1893, कंप्लीट हुआ था 1906 और इसे बनाने का उस समय का टोटल कॉस्ट 7,83,994 रुपीज़ और 3 करोड़ ईंटें इस्तेमाल किया गया। ब्रिक्स अंडमान में तैयार, बाकी मटेरियल बर्मा। जब जेल बना साइकिल व्हील की तरह था, जिसमें टोटल 7 बिल्डिंग थे। अभी हमें केवल 2 बिल्डिंग दिख रहा है, ऐसे 7 बिल्डिंग थे ऑक्टोपस के जैसा। और सेल्स थे सभी में मिलाकर के 693। एक सेल में एक फ्रीडम फाइटर ही रखते थे। सेल का लेंथ 13.5 फीट, विड्थ 7.5 फीट, हाइट 10 फीट। वेंटिलेशन है बैक साइड 8 फीट ऊपर, ताकि फ्रीडम फाइटर अंदर से बाहर देख ना। बिल्डिंग को ऐसा बना देखिएगा, एक बिल्डिंग का फ्रंट साइड है तो दूसरे का बैक है। इस वजह से दोनों बिल्डिंग्स के बीच कोई कम्युनिकेशन करें, एक दूसरे को देख पाते थे, बात कर पाते थे। काम करने के लिए 7 में से 4 ब्लॉक के सामने वर्क शेड, वहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स कोकोनट ऑयल निकालते थे, हमने देखा। और बीच में सेंट्रल टावर के टॉप पे एक गार्ड ऊपर से बाउंड्री वॉल वॉच करता था। उनके अलावा 21 सेपरेट सिक्योरिटी गार्ड डे नाइट वॉच करता था। हर फ्लोर का फर्स्ट रूम सिक्योरिटी गार्ड का है, उनका डोर जो बड़ा रहेगा। फ्रीडम फाइटर का डोर जो छोटा है और डोर का लॉक जो है डोर के लेफ्ट साइड में काफी दूर है। जितना भी लंबा हाथ हो, चाबी मिल भी जाए तो भी ताला खोल लेगा। Oh my God, this is the lock. राइट साइड में एक और होल है, वो उनके लिए can't do anything. He can't run also. वही चल। तो अभी हमारे पास 7 में से केवल 3 ब्लॉक्स ही बचा हुआ। नंबर 1, नंबर 7, इसके पीछे भी है नंबर 6, बाकी 4 ब्लॉक डैमेज हो गए। 1941 अंडमान में भूकंप आया। भूकंप में मेन हिस्सा क्या गिरा? वॉच टावर का टॉप। उसके बाद जेल का मेंटेनेंस नहीं हुआ। आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद 1964 सेलुलर जेल का जो हिस्सा रहने लायक नहीं रहता, खराब हो गया, उसे पूरा हटा करके वहाँ पे हॉस्पिटल बना दिया, जो आज अंडमान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। गोविंद बल्लभ पंत हॉस्पिटल नाम रखा गया। जब हम जाएंगे तो वहाँ से देखिए। नीचे फर्स्ट रूम में फोटो रखा होगा सचिंद्र नाथ सान्याल जी का, जो बनारस कॉन्स्पिरेसी केस में अंडमान लाया गया था। उनका तस्वीर है। वहाँ पे एक बेड है, एक ब्लैंकेट है, 2 बर्तन है खाना खाने का और एक टॉयलेट का मॉडल के रूप में रखा हुआ। देख लीजिएगा, सारे कमरे एक जैसे देखिए उसका फोकस। क्यों చేస్తా 3 बिल्डिंग में बचा 1, 7 और 6, बाकी 4 हिस्सा टूट गया। वहाँ पे देखिएगा न्यू हॉस्पिटल बन गया। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, सब कुछ यहाँ पर ब्रेक से नहीं देते हैं। खाना, ट्रीटमेंट, एक्सरे, सिटी स्कैन, अल्ट्रासोनोग्राफी सब कुछ फ्री है, सभी लोगों के लिए फ्री। हॉस्पिटल का नाम है गोविंद बल्लभ पंत। फ्रीडम फाइटर्स का लिस्ट है, कौन कौन से स्टेट से कितने कितने फ्रीडम फाइटर्स इस जेल में रहते हैं, स्टेट वाइज जेल वाइज। मुंबई से कितने, पंजाब, बंगाल, आसाम, यूपी, बिहार, मद्रास, आंध्र, दिल्ली। कुछ क्रांतिकारियों का नाम है विनायक दामोदर सावरकर जी, बटुकेश्वर दत्त, उल्लासकर दत्त, पृथ्वी सिंह आजाद, जयदेव कपूर, त्रिलोकनाथ चक्रवर्ती, वीरेंद्र कुमार घोष, लोकनाथ बाल, हरे कृष्ण कोनार, बाबा पान सिंह, पंडित राम रखावाली, इंदु भूषण रॉय और सचिंद्र नाथ सान्याल जी। और इसी फ्लोर का आखिरी कमरा है विनायक दामोदर सावरकर जी का। सावरकर जी को सेलुलर जेल में रखा गया 10 ईयर्स, 1911 से 1921। सावरकर जी को लंदन से अरेस्ट करके इंडिया लाते वक्त शिप जब मार्सेलस हार्बर के निकट से गुजर रहा था, उस दौरान सावरकर जी ने जहाज का, टॉयलेट का, ऊपर का साइड का ग्लास तोड़ करके जंप किया बाहर और स्विमिंग करके चले गए मार्सेलस हार्बर, फ्रांस। वहाँ पे फ्रांसीसी गार्ड्स ने पकड़ लिया, ब्रिटिशर्स को हैंड ओवर कर दिया। ब्रिटिशर्स इंडिया लेके गए, केस चला। फिर सावरकर जी को अंडमान लेकर के आए थे अंग्रेज 30 जून 1911। जब लाए थे तो डरते थे, एक बार वहाँ से भाग गया है, दोबारा यहाँ से न भागे, इसलिए अपने कड़े पहरे में रखा कि उनके जो बड़े भाई थे गणेश दामोदर सावरकर जी, वो सेलुलर जेल में उनसे भी पहले से थे। लेकिन दोनों भाई जो है 2 साल तक आपस में मिल नहीं पाए, एक ही जेल में रहते हुए। फिर 1921 वी सावरकर जी को सेलुलर जेल से ट्रांसफर करवा दिया रत्नागिरी, महाराष्ट्र। 3 साल वहाँ पे हाउस अरेस्ट में रहे। फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस के 19 ईयर्स के बाद उनका डेथ हुआ था 26 फरवरी 1966, तब उनका एज 83। तो जहाँ गर्मी के दिनों 10 मिनट हमारे लिए खड़े रहना मुश्किल है, उन्होंने अपना 10 साल सेलुलर जेल में गुजारा था। अंडमान का एयरपोर्ट उन्हीं के नाम पर वी सावरकर इंटरनेशनल। उनका कमरा वापस जब आएंगे उस समय आप लोग देख सकते हैं। पहले हम ऊपर चलेंगे टॉप पे, बाकी दोनों बिल्डिंग का मरम्मत थोड़ा सा जा नहीं पाएंगे, इसी में लास्ट वाला कमरा वी सावरकर। Now whose room are we going to? वीर सावरकर's room. वीर सावरकर. Veer Savarkar. Veer Savarkar. And in his name the airport has been built here. Yeah, correct. Damodar Savarkar
सावरकर super alert though. See, but short he was. Hoy it is ata. Very brave poet. Yeah, very brave. Oh, damn. Yeah. Night at the light show on sata game. Yeah, correct. Inaugurated by Shri Amit Shah. यहाँ पे बैठ जाओ आप लोग, यहाँ पे खड़े हो जाओ।